Miss Shaheen Parveen, who is going to give you focus on one of her topics of her presentation. So I would like Shaheen ma'am to raise her hand so that I can unmute you. Okay. Yeah, yeah, I've seen now. Ma'am, I'm unmuting you. Is my voice clear to you? Yeah, good morning, sir. Good morning to all Good, of you. good morning. So, ma'am, today, as we Uh, already know, all the students, that today's ma'am's presentation is the first. Ma'am, would you like to screen share or camera speaking? no, sir. I will just explain by the camera and I will just screen share also. Okay, 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 ma'am. Over to you now. Okay, students, everyone pay attention, and ma'am is speaking. After that, there will be question and answer session. Okay, ma'am, over to you. Okay. Thank you. First of all, I would like to give thanks to my to our management who has organized this type of webinar for us, and that by this webinar we can just make understand the students how they will read in the classroom, how they will manage the classroom, how they gain more and more studies in the classroom by this webinar. I think it will be benefited for that all the students. Now, today my topic is effective teaching methodologies and skills. Now, then, first of all, I would like to say that in the classroom there should be teaching method to give the any information, to give the any knowledge, to make the students understand how they will read, how they will sit in the classroom, how they will understand the teachers. That these all things necessary for a student. First of all, the discipline skill should be in the classroom. If you are going in the classroom, are students not listening you, that means that they can't understand what you are teaching. That so students should be disciplined in the classroom. They should to listen carefully to the teachers what they are teaching. That second one is the classroom management, how they are sitting in the classroom, they are in proper way or not, their mind is just in the classroom or not, they are not doing another things in the classroom. Some students in the classroom that they are mentally not present in the classroom, that they are only sitting and just thinking about another things here there, about movies, about games, that it should be not in the classroom. They should be physically and mentally both present in the classroom. And next thing is that students engagement, how students are engaged in their study, it should be also necessary for a teacher. That if students are sitting, they are reading, but what they are reading, what teacher is explaining, that they are not understanding, that it should be take care of the teachers, that they should to ask again and again that type of students what they are doing, what they are not doing. That so about these all things we will discuss. I will just tell you you all that how they will read in the classroom and how they will manage all things. That first of all, just now here teaching methodologies. First one is effective teaching strategies. Second, classroom management. Next, teaching styles. Next, teaching problem. Then after that, the attitude of teachers, the best way to teach students and to control the attention of students. It should be in the teaching methodology. The teacher who is teaching in the classroom, the teaching is should be effective. What they are teaching in the classroom, the students getting or not, is there any effect on that to students or not, it should be necessary. Second, as I told, classroom management is very necessary, because क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सही से प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, क्लासरूम में रहने के बावजूद वो इधर उधर देख रहे हैं, या फिर टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को मतलब सही से समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्लासरूम में मतलब रहने का कोई मतलब ही नहीं है उनका हुआ। क्लासरूम में वो प्रॉपरली बैठे नहीं है, सही ढंग से अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ये सब जो है टीचर्स को मतलब एक टीचर को केयर करना पड़ता है, और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो भी सही से प्रॉपरली टीचर को सुने। दूसरा है टीचिंग स्टाइल। सारे टीचर्स एक वे में नहीं पढ़ाते, हर टीचर्स का अपना एक अलग स्टाइल होता है पढ़ाने का,
और वो अपने स्टाइल को कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से चेंज भी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लासरूम में जो समझ नहीं पाते हैं, तो उनको समझाने के लिए हम लोग दूसरा टेक्निक यूज करते हैं कि हमारा मकसद है, हम टीचर हैं, हमारा मकसद यही है कि बच्चे पढ़ें। ठीक है, तो बच्चे जब पढ़ें तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपरली उनको समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब उसको नहीं समझ पाते, तो हम लोग उनको अलग तरीके से समझाते हैं। जैसे कुछ बच्चे हम लोग एज अ थ्योरेटिकली समझाते हैं, कुछ बच्चे थ्योरेटिकली नहीं समझते हैं, उनको बाई विजुअलाइजेशन यानी बाई वीडियो के थ्रू, बाई डायग्राम के थ्रू उसको हम लोग समझा सकते हैं। उसके बाद है टीचिंग प्रॉब्लम। टीचिंग प्रॉब्लम्स डैट अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दौरान क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासरूम में डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर वो उनका मन नहीं लगता पढ़ने में। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को टीचर्स जो है टीचर को हैंडल करना चाहिए, और वो उसको मोटिवेट करके जो है टीचर को उनको उसको अटेंशन देना चाहिए ताकि वो बच्चे भी पढ़ें। उसके बाद है द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स। टीचर्स का एटीट्यूड ये बहुत जरूरी है। टीचर्स का एटीट्यूड कैसा है क्लासरूम में, टीचर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं स्टूडेंट्स में। जस्ट यू हैव सीन दैट if teachers are going with their smile on their face and they are entering the classroom, all students are happy, they interact the teachers because फेस एक्सप्रेशन इज नेसेसरी फॉर द टीचर्स। अगर आप बहुत क्रूडली जा रहे हो क्लासरूम में, बच्चे आपको देख के ऐसे ही डर गए तो वो पढ़ेंगे क्या। इसलिए क्लासरूम में अगर टीचर जा रहे हैं तो एक स्माइल के साथ जाएं ताकि बच्चे भी आपसे पॉजिटिवली इंटरेक्ट हो और वो आपकी बातों को समझे, आप जो पढ़ा रहे हैं वो अट्रैक्ट हो उसकी तरफ और अच्छे से उसको समझें। द बेस्ट वे ऑफ टीच स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को टीच करने का द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका क्या है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट if you are in the classroom, then fully take attention in the classroom that all students are listening to you or not, and you just take care one by one all the students that in the classroom। आप सभी बच्चों पे नजर रखें ताकि वो सारे के सारे अच्छे से स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से उन लोगों को बाय थ्योरेटिकली, बाय विजुअलाइजेशन, बाय डायग्राम, जिस तरह से भी हो उनको एक अच्छा नॉलेज दें ताकि वो समझ पाए क्लासरूम में। टू कंट्रोल द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का अटेंशन होना क्लासरूम में बहुत ज़रूरी है। अगर वो अटेंशन नहीं देंगे तो वो स्टडी कभी कर नहीं पाएंगे। और ये अटेंशन का काम हम टीचर्स का है कि हम लोग उसको किस तरह से मोटिवेट करें, किस तरह से उसको अट्रैक्ट करें उसकी स्टडी की तरफ, उसके सब्जेक्ट की तरफ, या हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको किस तरह से एक्सप्लेन करें कि वो बच्चे जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उस चीज़ को समझें। Now, first of all, I will show you that teaching skills. What is teaching skills? Unique function to deliver knowledge, expand understanding and talents. टीचिंग स्किल क्या है, यानी शिक्षक कौशल। टीचिंग कौशल है क्या, तो ये एक यूनिक फंक्शन है जो डिलीवर करता है टीचर्स की नॉलेज को और एक्सपैंड करता है अंडरस्टैंडिंग को, टैलेंट को। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपने बच्चे को किसी तरह से भी मोटिवेट कर लेंगे। अगर एक टीचर नॉलेजेबल होता है तो वो अपने बच्चे को किसी भी तरह से उसको नॉलेज देगा ही देगा। टीचर के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो खुद नॉलेजेबल हो। दूसरी चीज, ग्रुप ऑफ टीचिंग ऑपरेशन और बिहेवियर एक्ट विच आर एम टू असिस्ट स्टूडेंट्स लर्निंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। टीचर्स क्लासरूम में ग्रुपिंग में कोई भी वर्क करा रहे हैं उसमें किसका कैसा बिहेव है, कौन किस तरह से एक्ट कर रहा है, इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स को आप असिस्ट भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं उनको आप समझा सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप ग्रुप में कैसे वर्क करें। ये एक टीचर के अंदर कला होती है, बच्चे को किस तरह से मोटिवेट करना है। इंसाइट रिगार्डिंग द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स के लेवल में जाकर उसको समझना कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर आप पढ़ा रहे हैं उस चीज को वो नहीं समझ रहे हैं तो आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चाह रहे हैं। आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को अगर आप समझ जाएंगे तो आप उसको उसी के तरीके से, उसी ढंग से उसको समझाएंगे ताकि वो समझ जाए उस चीज को। हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग। अ टीचर शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द स्टूडेंट्स। टीचर्स को हमेशा अपने स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी रहना है, चाहे वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम उनके पास हो, थ्योरेटिकली हो, प्रैक्टिकली हो, चाहे जिस तरह का भी प्रॉब्लम हो वो ऑलवेज उनके लिए रेडी रहें। ताकि हम टीचर्स का ये
कर्तव्य है कि हम लोग जो है अपने बच्चे को हर तरह से हेल्प करें। अगर उनको रीडिंग प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम रीडिंग कंटिन्यू रीडिंग के द्वारा इसको इम्प्रूव करें। अगर रिसाइटेशन प्रॉब्लम है, इवन लर्निंग प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग हैंडल करें। नाउ अ ग्रेट टीचर इज पॉजिटिव। फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिवनेस। वी ऑल नो दैट पॉजिटिव माइंड इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। अगर हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो हमारा काम भी हर चीज पॉजिटिव होगा। अ टीचर शुड बी अ पैशन टू इंस्पायर or to help, right attitude, and expect good. These things should be in a positive teacher. एक पॉजिटिव टीचर के अंदर पैशन होना चाहिए, किस तरह से बच्चों को इंस्पायर करना है, किस तरह से उनसे उन काम करवाना है, वो अपना स्टडी करवाना है। राइट एटीट्यूड होना चाहिए और हम ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड। स्टूडेंट्स को हमेशा अप्रिशिएट करना है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको हमेशा अप्रिशिएट करें। Now, the effective teaching strategies, in first one is visualization. Visualization bring dull academic concept to life with visual and practical learning experiences. It's helping your student to understand how their schooling applies in the real world. Visualization is necessary. Visualization के द्वारा ही टीचर्स जो है बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। It refers to our ability to create picture in our heads based on text we read or word we hear. हम जो बोल रहे हैं वो बच्चे उस चीज को अपने माइंड में एक पिक्चर की तरह लें कि वो क्या हो रहा है। जिस तरह से बच्चे पढ़ते पढ़ते अपने माइंड में कभी कभी जो है खेलने का सोचने लगते हैं, मूवी देखने का सोचने लगते हैं, एक तरह का पिक्चर उनके माइंड में बन जाता है। तो उसी तरह से जब हम पढ़ा रहे हो तो बच्चे के मन में ये एक पिक्चर क्रिएट हो कि हाँ ये चीज ऐसे हो रहा है। तो उसके आगे मतलब हमारे टीचर जो बता रहे हैं इसका क्या ये सही है या इस तरीके से ये हो रहा है, इस चीज का पिक्चर माइंड में उनकी होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम उनको स्टडी दे रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उनको पिक्चर के द्वारा भी समझा सकते हैं, एक डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं, पिक्चर के थ्रू भी उनको समझा सकते हैं, एक विजुअल तरीके से भी समझा सकते हैं ताकि वो बच्चे पढ़ लें। आफ्टर आइडियाज फॉर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, उनको आइडियाज देंगे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। जैसे हमने कोई चीज उनको दिया तो उनके माइंड में क्रिएट होना चाहिए, आइडियाज आना चाहिए। व्हाट विल आई लर्न, हम लोग क्यों इसे पढ़ रहे हैं। व्हाट विल आई क्रिएट, हम लोग क्यों इसे क्रिएट कर रहे हैं। सपोज हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट दिया, तो सिर्फ प्रोजेक्ट देने का मकसद ये नहीं कि आप जाइए उसको डेकोरेट कीजिए और लिखिए लेकर चले आइए। उस प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या है, हम क्यों वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं, या टीचर ने हमें क्यों वो प्रोजेक्ट दिया है। इस चीज को बच्चों के माइंड में ये रियलाइज कराना कि इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, इससे क्या बेनिफिट होगा आपको। व्हाट विल आई सॉल्व, अब उस प्रोजेक्ट को किस तरह से वो सॉल्व करें। व्हाट डू आई लव, वो क्यों उसमें इंटरेस्ट लें, किस तरह से उसमें अपनी लगन के साथ उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। व्हाट कैन मेक एन इम्पैक्ट, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इट शुड बी ऑल थिंग्स that these all things should be in the mind of the students, that why they all are creating these things, and these all ये सारी चीजें टीचर्स जो है अपने बच्चे को समझाते हैं, बताते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, उसमें वो किस तरह से इंटरेस्ट लें। ये सारा इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की होती है। प्रोजेक्ट देने से पहले सब कुछ उसको क्लियर कर दें और बच्चे भी उसको सही ढंग से लें। आफ्टर दैट क्लासरूम, क्लासरूम में हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट टेक्नोलॉजी यानी एज अ प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग क्लास लेते हैं, या फिर किसी वेबसाइट के द्वारा भी हम लोग जो है अपने बच्चों को सर्चिंग इंजन के थ्रू जो है बहुत सारे नॉलेज देते हैं, ताकि वे लोग आज के डेट में आज के हिसाब से अपने आप को जो है हर एक चीज के बारे में हर एक चीज का नॉलेज रखें। टेक्नोलॉजी दिस हेल्प्स मेक टीचिंग एंड लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड फन। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम एक फन के थ्रू भी हम बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। स्पेशली इन जूनियर क्लासेस में देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चों को वीडियोस
और मोटिवेशनल वीडियोस या मूवीज वगैरह दिखा करके उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो पढ़ें। या फिर वो बहुत सारे जूनियर क्लासेस में ऐसा भी देखा गया है कि उनको उनको अल्फाबेट्स भी एक रैम्स के थ्रू या फिर जो है एक सॉन्ग्स के थ्रू इस तरह से उनको मतलब सिखाया जाता है ताकि वो अच्छे से सीख जाए। सीनियर क्लासेस में क्या होता है, इवन आफ्टर 4 और 5 to 10 हम लोग प्रोजेक्टर क्लास लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एक वीडियो के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चे सही से समझ पाए। थ्योरेटिकली जितना समझना वो समझते ही हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि बच्चे, इसलिए उन लोगों का मन थोड़ा खेल में ज्यादा रहता है, इसलिए खेल खेल में ही हम बच्चों को पढ़ाएं, उनको एक वीडियोस के थ्रू दिखाएं। जैसे इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, ऐसा आप लोग हमारे स्कूल में होता ही है कि हम लोग प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को एजुकेशन देते हैं। जो भी थ्योरेटिकली हम लोगों ने क्लासरूम में पढ़ाया उसको एक्सप्लेन करते हैं वीडियो के थ्रू, जिससे कि वो अच्छे से समझ जाए। जो बच्चे क्लासरूम में थ्योरेटिकली नहीं समझ पाते हैं वो टेक्नोलॉजी के द्वारा यानी इस वेब क्लास के द्वारा जो है अच्छे से समझ जाते हैं। It also helped encourage active participation in classroom. Students also take interest in this classroom using device like a computer, tablet, or other types of technology in their classrooms and also at their home to give more to gain more and more knowledge about that topics. Now, professional development. Professional development is also necessary, that it is learning to earn or maintain professional credentials such as academic degrees to formal course work, attending conferences and information, informal learning opportunities situation in practice. You can see here professional development. In professional development, there is the help of mentoring, consultation, coaching, communities of practice, reflective supervision, lesson study, and technical assistance. These all helps to a student to do a professional development. इससे कोई बच्चे अगर अभी स्टडी कर रहे हैं, उनका आगे कुछ ना कुछ तो एम होगा, तो हम उनके एम को ध्यान में रखते हुए ही उनको इस तरह से मेंटरिंग करें ताकि वो अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी रख पाए, फ्यूचर में वो किसी के सामने खड़े हो पाए, खुद को अपने इस लायक बनाएं ताकि वो अपने लाइफ में अपने एम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। It also improves knowledge and skills in order to facilitate individuals' school-wide and district-wide improvements. It's also improve in the children's. Now, technique for better classroom control. First of all, focus attention on entire class. A teacher should be focused and give attention entire class, whether the student is sitting in the first bench or sitting at the last bench. अगर कोई बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा हो या लास्ट बेंच पे बैठा हो, किसी भी बेंच पे हो, मैटर वो नहीं है कि आपका अटेंशन पूरा पूरे सारे बच्चों पे होना चाहिए। वो सही तरीके से प्रॉपरली आपसे इंटरेक्ट है कि नहीं है। सेकेंड, डोंट टॉक ओवर स्टूडेंट चैटर। जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा चैटिंग कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट कीजिए, बताइए, क्योंकि बहुत सारे क्लासरूम में ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको चैटिंग बहुत ज्यादा पसंद होता है। वो क्लासरूम में बैठकर बस गॉसिपिंग स्टार्ट कर देते हैं, वेदर बॉयज और गर्ल्स, सम स्टूडेंट्स हैव लाइक दैट। So we should to control on that students. We should to motivate that students that they are coming here for what? उनका मकसद क्या है यहाँ आने का, पढ़ने का। तो वो अपना पढ़ाई का ही काम करें। हाँ, डिस्कशन क्लास होता है, आप उसमें डिस्कस कीजिए, बट नो चैटिंग इन द क्लासरूम। Silence can be effective. Yeah, this is the main thing. Silence. If I'm a teacher, then it should be a quality a teacher that silence should be maintained in the classroom. If your classroom is not silent, then how you'll teach the student? And students also should to take care teacher is present in the classroom। अगर टीचर क्लासरूम में है तो स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि आप टीचर की बातों को सुने, क्या वो बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्योंकि आपका मेन मकसद है यहाँ पढ़ाई करना। और टीचर्स, सबसे पहला टीचर्स का ड्यूटी है क्लासरूम में साइलेंस मेंटेन करना। अगर साइलेंस नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। use softer voice so student really have to listen to what you are saying।
द टीचर शुड बी टॉक टू द स्टूडेंट्स इन सॉफ्ट वॉइस। अब बहुत रूडली बच्चों से बात नहीं करें, क्योंकि बच्चे आप अगर रूडली बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो डर जाएंगे, वो आपसे क्वेश्चन राइज नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा हेजिटेट होंगे। तो टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों से सॉफ्टली बात करें, ना कि क्रूडली। चाहे वो बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े, आप उसको सॉफ्टली बात करके ही उसको पढ़ाई की तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप रूडली आप उसको बोलेंगे तो वो कभी नहीं समझ पाएगा। आफ्टर दैट, डायरेक्ट योर इंस्ट्रक्शन सो दैट स्टूडेंट्स नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। डायरेक्ट योर इंस्ट्रक्शंस, आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स तक सही से प्रॉपर्ली पहुंच रहा है, और वो किस तरीके से उसको उस काम को कर रहे हैं, इस चीज को आपको चेक करना। आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया क्लासरूम में क्या ये जस्ट यू विल डू होमवर्क दिस वन, लर्न दिस वन, बट दे आर डूइंग और नॉट, यू शुड टू टेक अ टीचर शुड to check all the students, teacher should to ask all the students they are getting what you are giving instructions। आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और वो किस तरह से क्लासरूम में अपने टीचर्स के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करेंगे। इट शुड बी proper in the classroom. Now the scientific method. Being a science teacher, just I will give you some scientific method that just it is a problem solving method. In scientific method, that should be the problem solving method. Science is what? Experiment based, totally experimental subjects. That so students should be problem solving method. It should be proper in the classroom. Involve reflective thinking, reasoning, and results from the achievement of certain abilities, skill, and attitude. Involve reflective thinkings, reasonings, and results from the achievement। achievements के लिए बच्चों के अंदर थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी, उसके अंदर रीजनिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी, ताकि वो एबल हो सके अपने स्किल्स उनका एटीट्यूड और उनका एबिलिटी जो है इंक्रीज कर सके। Any method of solving a problem systematically and scientifically may be called scientific method। कोई भी मेथड जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली तरीके से कर रहे हैं, साइंटिफिकली तरीके से कर रहे हैं, वो हमारा साइंटिफिक मेथड कहलाता है। Also known as the methods of science or the method of the scientist। As a science teacher, there should be the knowledge of the scientific methods and the method of science, how they are teaching that the method of science teaching is first of all the theory, then after experiment is so necessary in science class. Without experiment, that science will be incomplete, because science completely based on experiment। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। परिंदे जब उड़ने की ठान लें, परिंदे जब उड़ने की ठान लें तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। So students, you will take care, and I give bless you that you never be negative in your life, always be positive and be punctual and continue your routine. That okay? Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. And really, ending was superb and very impressive. All the students also heard that, and really, it is very beautiful line, and every student should follow that. Thank you so much.